Ji, to welcome back to the Teachers Talk official. I hope so you people will be in very good health. So today we are going to discuss chapter number 12, Healthy Lifestyle, NBF English 2024 का चैप्टर नंबर 12 जो कि लास्ट चैप्टर है इस किताब का, वो हम डिस्कस कर रहे थे। इससे कबल हमने रीडिंग डिस्कस की थी इसकी, तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो काइंडली वॉच दैट वीडियो फॉर द बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द एक्सरसाइज। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन है, प्री रीडिंग क्वेश्चन से हम स्टार्ट करेंगे। डू यू थिंक हेल्थ एंड वेल बीइंग इज इंपॉर्टेंट फॉर अस? व्हाट डू यू थिंक आर द वेज टू कीप आवरसेल्व्स हेल्दी? दो क्वेश्चन है, आपने इनका आंसर करना है। Yes, I strongly believe. So the first question of pre-reading is, do you think health and well-being is important for us? Yes, I strongly believe that health and well-being are crucial. Crucial mean important. Okay, for our overall quality of life, daily life को जीने के लिए it is very crucial, important है। Good health enables us to pursue mean continue our passions, spend time with loved ones and live life to the fullest. Fullest होता है मुकम्मल enjoy करना जिंदगी को। What do you think are the ways to keep ourselves healthy? I think some effective ways to maintain good health include regular exercise, balanced eating, sufficient sleep, स्ट्रेस मैनेजमेंट एंड स्टेइंग हाइड्रेटेड। स्टेइंग हाइड्रेटेड मीन है पानी का ज्यादा इस्तेमाल करना। स्ट्रेस मैनेजमेंट है कि आप जो है परेशानी को मैनेज कर सके अच्छे से। सफिशिएंट स्लीप, हेल्थी स्लीप हो, आपका स्लीप पैटर्न ठीक हो। बैलेंस डाइट हो, यानी कि ना ज्यादा खाएं ना कम खाएं, और जो खाएं अच्छा खाएं। वाइड रीडिंग क्वेश्चन है, व्हाट हेल्थी हैबिट्स डू यू हैव? थिंक ऑफ वेज टू प्रमोट वेल बीइंग इन लाइफ। ठीक हो गया, तो कौन कौन सी हेल्दी लाइफ जो है आदत आप में है? आई हैव हैबिट्स लाइक डेली एक्सरसाइज। इट इज एन ओपन क्वेश्चन, यू कैन आंसर इन योर ओन वर्ड्स। ओके, आई एम राइटिंग माय ओन आंसर। आई हैव हैबिट्स लाइक डेली एक्सरसाइज, हेल्दी ईटिंग एंड एडिक्वेट स्लीप। एडिक्वेट मीन इनफ, which promote my well-being. The text inspires me to prioritize. Prioritize me to put someone on priority, on the first in number. Relationships and lifelong learning for the better well-being. Okay, next post reading question है, do you find the text inspirational? What inspire you to focus on your health and well-being after reading the text? Okay, yes, I find the text inspirational. It motivates me to focus on my health and well-being by incorporating mindfulness, giving back and learning new skills into my daily life. I feel inspired to make small changes to improve my overall well-being. It is very simply written. I hope so you understand it. Next है reading and critical thinking question, जो कि एंड पे दिए होते हैं comprehension passage के लिए। Do you think health and well-being are connected at different concept? Explain. Health and well-being are connected but different concept। ये पहले पैराग्राफ में आंसर दिया था। Health refer to the absence of disease, while well-being encompasses mean surrounded with physical, mental and emotional balance and quality of life. How can you define well-being? Describe its type as well. Well-being is a positive and fulfilling state of being that include physical, mental and emotional health. ठीक हो गया, ये definition हो जाएगी। And after that यहाँ से second part का आंसर शुरू होगा। There are two types. Objective well-being, basic needs met, okay, जो daily life में basic जरूरियात है हमारी। And subjective well-being, happiness and life satisfaction after the objective well-being. Is stress an impediment in the way of? Impediment होता है difficulty, hurdle, obstacle in a way of achieving the goal of healthy living. How? Yes, stress is a significant impediment to healthy living. Chronic stress can lead to physical and mental health issues like anxiety, depression, cardiovascular disease, making it harder to achieve overall well-being. जी, तो ये होता है क्रोनिक जो होती है वो ऐसी स्ट्रेस होती है जो कि मतलब जिसको कंट्रोल किया जाता है, लेकिन उसका इलाज परमानेंट कोई नहीं होता। ठीक हो गया। एंड आफ्टर दैट डिप्रेशन, आपको पता है एंजाइटी इज अ फर्स्ट स्टेज ऑफ डिप्रेशन। एंड आफ्टर दैट कार्डियोवैस्कुलर मीन रिलेटेड टू हार्ट। ओके, what are the ways through which you can improve your overall health? Ways to improve our overall health include regular exercise। सबसे पहले रेगुलर एक्सरसाइज करें।
बैलेंस डाइट यानी कि मुतवातिर ग़िज़ा लें, ऐसी ग़िज़ा जिसके अंदर सारे के सारे न्यूट्रिएंट्स मौजूद हों। सफिशिएंट स्लीप, स्ट्रेस मैनेजमेंट, सोशल कनेक्शन से लोगों के साथ एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बनाएं, उनके साथ एक अच्छे राब्ते में आए, एंड लाइफ लॉन्ग लर्निंग, सीखते रहें जिंदगी के अंदर आगे, नई से नए स्किल सीखें। वेल बीइंग इज मोर देन हैप्पीनेस एंड लाइफ सेटिस्फैक्शन, डू यू अग्री? Yes, I agree. Well-being encompasses more than just encompasses means surrounded with, okay, यानी कुछ चीजें उसके अंदर मौजूद होती हैं, then just happiness and life satisfaction, including physical and mental health, purpose and fulfillment. How does modern lifestyle affect our physical and mental health? Give your answer along with real life example. Modern lifestyle negatively affects physical and mental health through factors like sedentary jobs, processed foods, social media, stress, and lack of sleep. Example include increased obesity rates, mental health issues, and decreased attention span. हमारा attention span बहुत कम हो चुका है, obesity बढ़ चुकी है, और mental health बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, डिप्रेशन में जा चुके हैं हम लोग। तो ये आपकी थी क्रिटिकल थिंकिंग के क्वेश्चन आंसर्स। वाइल रीडिंग हमने डिस्कस कर लिया है। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द वोकैबुलरी एज इट वाज डिमांडेड बाय वन ऑफ द स्टूडेंट। ही टोल्ड मी दैट सर वोकैबुलरी लाजमी किया करें। सो नेविगेट टू फाइंड वन्स वे थ्रू अ सिचुएशन, ऑब्स्टिकल, एनवायरनमेंट। किसी भी सिचुएशन पे बैठकर सोचना, ठीक हो गया, उसको परखना और उस प्रॉब्लम का हल ढूंढने की कोशिश करना। ओके, डिबिलिटेटिंग काजिंग सिवियर वीकनेस एंड इम्पेयरमेंट। डिबिलिटेटिंग होता है कमजोर हो जाना। फ्रस्ट्रेशन आपको पता है मायूसी को बोलते हैं। फीलिंग अनॉयंस एंड डिसअपॉइंटमेंट। स्टेबिलिटी, स्टेट ऑफ बीइंग फर्म। स्टेबिलिटी होता है मजबूती। ओके, गैज होता है मेजर्ड और डिटरमिन्ड। ओके, टेंजिबल होता है कैपेबल ऑफ बीइंग टच्ड, यानी कि जो चीज रिजिड होती है, ठोस फॉर्म में होती है, सॉलिड फॉर्म में होती है, उसको कहते हैं। एम्बेडिमेंट आपको पीछे बता चुका हूं, मुश्किलात को बोलते हैं। ऑब्स्टिकल, हिंड्रेंस। एम्पल, मोर देन इनफ, सफिशिएंट। एम्पल का मतलब होता है एक जरूरत के मुताबिक। वहां पे एम्पल वाटर वर्ड यूज हुआ है कि इतना पानी आप पिए जितना आपकी बॉडी को रिक्वायर्ड हो। रिजिलियंट होता है फ्लेक्सिबल होना, यानी कि अडॉप्टिव होना। किसी भी सिचुएशन के अंदर आप मतलब रह सके, जी सके। एबल टू बाउंस बैक फ्रॉम सेटबैक, जी प्रॉब्लम के बाद भी आप अपनी जिंदगी को आगे सरवाइव करवा सके। डिस्क्रिमिनेशन, अनजस्टिस ट्रीटेड। डिस्क्रिमिनेशन होता है दो चीजों के दरमियान फर्क करना, ठीक हो गया, अनजस्टिस इसको आप कह सकते हैं। आफ्टर दैट ये हम डिस्कस कर चुके हैं क्वेश्चन आंसर सारे। ओरल कम्युनिकेशन है, ये वही क्लास एक्टिविटीज है, आप लोगों ने खुद ये कर लेनी है एक दफा रीड करके इसको। नेक्स्ट है हमारे पास एडजेक्टिव फ्रेज। अच्छा, एडजेक्टिव फ्रेज समझने के लिए आपके लिए ये समझना बहुत जरूरी है कि एडजेक्टिव क्या होता है। सो एडजेक्टिव्स आर द वर्ड्स दैट वी यूज टू ऐड समथिंग इनटू द मीनिंग ऑफ द नाउन। किसी भी नाउन के मीनिंग में हम जब कोई क्वालिटी ऐड करना चाहते हैं तो हम वहां पर एडजेक्टिव यूज करते हैं। सो एडजेक्टिव, ओके, एडजेक्टिव फ्रेज, एडजेक्टिव की बात कर रहे थे तो एडजेक्टिव्स आर द वर्ड्स दैट विल मॉडिफाई। तो इसके लिए थोड़ी सी एक एक्सरसाइज है, थोड़ी सी वो जरा देख लें जी। यहाँ पर देखें, शी सिंग्स अ ब्यूटीफुल सॉन्ग। यहाँ पे ये जो ब्यूटीफुल है, ये अगर आप देखें तो सॉन्ग को मॉडिफाई कर रहा है। तो वी विल से दैट हियर द ब्यूटीफुल इज अ एडजेक्टिव। I write a long letter, long जो है लेटर से पहले आ रहा है, लेटर को मॉडिफाई कर रहा है, it is also an adjective. On the some boys, some is also an adjective here. So in that way we can use adjective, okay? So after that ये एग्जाम्पल देखते हैं अभी। prepositional phrase, सबसे पहले preposition को अंडरस्टैंड करना होगा। Prepositions are the words that will build a connection between subject and object. सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट के दरमियान जो प्रेपोजिशन है हमें रिलेशन बताती है, ताल्लुक बताती है। तो एग्जांपल जरा इसकी देख लें। द कार इज इन द पार्किंग। वेयर इज कार? इन द पार्किंग। तो यहाँ पे कार की लोकेशन हमें बताई गई है। द बुक इज ऑन द टेबल। ऑन यहाँ पे प्रेपोजिशन है। आफ्टर दैट
आई विल मीट यू एट 4 o'clock। तो एट यहां पे क्या हो जाएगा, हमारे पास preposition हो जाएगी। एंड आफ्टर दैट एडवर्बियल फ्रेज। तो एडवर्ब क्या होता है पहले ये समझना जरूरी है, फिर फ्रेज डिस्कस करते हैं। एडवर्ब्स आर द वर्ड्स दैट विल मॉडिफाई अ वर्ब, एडजेक्टिव और एन अदर एडवर्ब। ओके, सो शी रैन फास्ट, यहाँ पे ये देखें ये वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है फास्ट, तो हम इसको कहेंगे कि ये क्या है, हमारे पास एडवर्ब है। शी सिंग्स ब्यूटीफुली, ठीक हो गया, तो यहाँ पे ब्यूटीफुली क्या कर रहा है, सिंग्स को मॉडिफाई कर रहा है। ही सिंग्स वेरी ब्यूटीफुली, यहाँ पे वेरी ब्यूटीफुली को मॉडिफाई कर रहा है। बोथ आर एडजेक्टिव, तो एक एडजेक्टिव दूसरे एडजेक्टिव को मॉडिफाई कर रहा है। एंड आफ्टर दैट दे हैव अ वेरी गुड, वेरी यहाँ पे देखें एडजेक्टिव को मॉडिफाई कर रहा है, गुड को। तो ये तीन फंक्शन होते हैं, वर्ब को मॉडिफाई करेगा, एडजेक्टिव को मॉडिफाई करेगा एंड एन अदर एडवर्ब, जैसे इस सेंटेंस में है वेरी ब्यूटीफुली, दो एडवर्ब एक दूसरे, और यहाँ पे एट जो है ये फिर प्रेपोजिशन हमारे पास आ जाएगी। ओके, सो एक दफा डेफिनेशन देख लेते हैं। एडजेक्टिव फ्रेज इज अ फ्रेज दैट कंटेन एन एडजेक्टिव बट देयर इज मोर टू इट देन दैट एज होल। एन एडजेक्टिव फ्रेज, बस एडजेक्टिव फ्रेज ऐसी फ्रेज होती है जिसमें प्रेपोजिशन भी हो, इन, ऑन, एट भी हो, ठीक हो गया, और साथ में वो मिलकर पूरी की पूरी प्रेपोजिशन वाला सेंटेंस जिसमें एक प्रेपोजिशन एक ऑब्जेक्ट लगा हो और वो मिल के सारे किसी एक नाउन को मॉडिफाई कर रहे हो। एग्जाम्पल जरा देखें, एलेक्स इज अ वेल बिहेव्ड मैन। यहाँ पे वेल बिहेव्ड, किस तरह का आदमी एलेक्स, वेल बिहेव्ड मैन। ही इज अ मैन ऑफ फ्रेंडली नेचर, व्हाट काइंड ऑफ मैन ही इज, ऑफ फ्रेंडली नेचर। तो ऑफ यहाँ पे प्रेपोजिशन है। जूली इज अ वुमन ऑफ जॉर्जियस स्टाइल, ठीक हो गया, गॉर्जियस आर जॉर्जियस। ओके, शी लीड्स अ वेरी इंटरेस्टिंग लाइफ, अ वेरी इंटरेस्टिंग जो है वो लाइफ को मॉडिफाई कर रहा है। After that, a prepositional phrase. A phrase is a group of words without a subject and verb. Okay, तो ये phrase आपको definition पता है कि जिसमें subject and verb नहीं होते, object होता है और एक आध preposition होती है। तो most probably preposition भी जो ना हो तो चल जाता है निजाम आपका। So phrase क्या, prepositional phrase are used as adjective or adverbs. They indicate the relationship between the object and another part of the sentence. ये रिलेशन बताती है जैसे फ्रेज का काम होता है, उसका preposition का वर्क होता है। He sacrificed his life for the sake of his country, ठीक हो गया, तो for the sake यहाँ पे ये देखिए preposition for लगा हुआ है यहाँ पर, तो इसके बाद वाला सेंटेंस जो होगा वो आपका prepositional phrase हो जाएगा। In the end, तो in के बाद वाला स्टेटमेंट जो होगी वो आपके पास हो जाएगी। यहाँ पे वैसे टू जो है ये भी प्रेपोजिशन है, लेकिन ये प्रेपोजिशन ही इज ऑन द वे, ठीक हो गया, ऑन द वे यहाँ पर हो जाएगा। बाई वर्किंग, बाई यहाँ पे प्रेपोजिशन है, यहाँ पे ऑन प्रेपोजिशन है, तो ये हो जाएगा। एडवर्बियल फ्रेज यानी ऐसी फ्रेज जो एडवर्ब का काम करेगी। एडवर्ब फ्रेज ग्रुप ऑफ वर्ड दैट हैव द सेम इंपैक्ट ऑन द एडवर्ब, जैसे एडवर्ब का काम है वही काम ये करेगा। जैसे द हॉर्स रन्स एट अ गुड स्पीड, हॉर्स रन्स एट अ गुड स्पीड, तो देखें जरा, तो ये रन्स को मॉडिफाई कर रहा है। I was in hurry then, so what I was in hurry then, तो was को मॉडिफाई कर रहा है कि what was the condition at that time. I ran as fast as possible, तो यहाँ पे अगेन ran को मॉडिफाई कर रहा है। He works very slowly, how he works very slowly, ठीक हो गया। अब यहाँ पे एक एक्सरसाइज दी हुई है, इसको हमने सॉल्व करना है। Read the following sentences and highlight adjective phrases. The boy in the red shirt, तो बॉय को मॉडिफाई कर रहा है इन द रेड शर्ट। Which one of your trips would you describe as the most adventurous one? Most adventurous trip, ट्रिप को मॉडिफाई कर रहा है ये। Is the bag by the table yours? Okay, by the tables yours, ठीक है, बैग को मॉडिफाई कर रही है उसकी लोकेशन, by the tables yours. Are you shorter than your brother? तो कंपैरिजन हो रहा है दो चीजों के दरमियान, ठीक हो गया। The boy with the post, ओके ये हो जाएगा। उसके बाद कैन यू बाय मी अ बॉक्स ऑफ वाइट होममेड, ऑफ वाइट, किस कलर का बैग चाहिए, ऑफ वाइट, जैसे कि वाइट बॉक्स अगर कहते हैं उसको, ठीक हो गया। द रेड हेयर्ड
Portuguese boy impressed all his teachers into the next one is all the children have read the play about the poor man and the king. About what? Play was about the poor man and the king. The city is expecting very few sunny days this month. Very few sunny days. The tall Egyptian building is one among the wonders of the world. The wonders of the world. And after that, we are supposed to discuss prepositional phrases. Okay. After the movie, to a restaurant for a burger. जहाँ यहाँ पर preposition आ रही है उसको prepositional phrase कहेंगे. Without sugar for the dinner guest. From midnight to noon on her science project. Over the river, through the woods to grandfather's house we go. We go नहीं होगा, grandfather house तक हो जाएगा. Okay. He ate 3 boxes of popcorn with the butter during the movie. With the butter during the movie हो जाएगा. Despite his fear of water. After that, with her to the seminar and at the country with the freckles. For breakfast with strawberries down the dock with long whiskers. Okay. And after that है adverbial phrase. ऐसी phrase जो adverb का काम करेगी. The salesman went door to door. Door to door यहाँ पर sorry आपके पास जो है वो होगा main जो आपकी adverbial clause है. Door to door. Okay. And in the next sentence, the girls were running to and fro. To and fro यहाँ पे adverbial phrase होगी. How she was running to and fro. They left their home country to pursue better opportunities. Why they left? Left को modify कर रहा है. To pursue better opportunities. His reputation as a liar spread far and wide. Where spread? Far and wide. You can find that brand at all places. Okay, find at all places. तो find को modify कर रहा है at all places. The crime scene investigator found a clue on this spot. Found what? A clue. Rocky ran at a great speed. How Rocky ran at a great speed? It's impossible for humans to survive on the moon without proper equipment. तो इंसान के लिए मुश्किल है वहां पे survive करना. How to survive without equipment? I climbed up on the roof. Where I climbed up on the roof. The most warmly welcomed the guest. Told them to make themselves at home. What told? To make themselves at home. Next है identify the adjective, prepositional and adverbial phrases in the text given below. Write in the table. Okay, एक दफा इसको रीड कर लेते हैं फिर उसके बाद नीचे मैंने निकाल के लिखती हैं सारी चीजें. In the heart of the scene, sunny meadow, a vibrant tapestry of wild lilies sprawled across the bright green landscape, painting it lots of colors, among them elegant crimson poppy moved elegantly in the gentle breeze, its petals garlanded with the droplets of the morning dew. A family of bumblebees hummed happily, moved from one glowing blossom to another, collecting nectar with their bodies dipped in the color of the nature. As the sun mounted higher in the indigo sky, the grazing land came alive with the symphony of wildfire. The birds rested on the gnarled moss-covered branches of very old oak trees, singing musical tunes that echoed through the vale. A chattering brook, its water clear as crystal, curled its way through the pastures, babbling happily as it journeyed towards the snow-capped peaks. Among this, the flowers stood as elegant jewels, increasing the beauty of countryside with prismatic colors and sweet fragrance. Okay, अब यहाँ पर जरा देखें
तो गौर से सबसे पहले serene sunny जो है वो एडजेक्टिव फ्रेज का काम कर रहे हैं, वाइब्रेंट एडजेक्टिव का काम कर रहा है, ब्राइट ग्रीन, एलिगेंट, क्रिम्सन, जेंटल, glowing, happy, indigo, gnarled, most covered, very old, musical, clear as crystal, snow, elegant and crimson. Okay, and after that sweet and fragrance is also fall into this category. Next preposition phrase, in के बाद, on के बाद, at के बाद, preposition के बाद वाली जो लाइन है, in the heart of a serene meadow, across the landscape, among them, in the gentle breeze, with droplets, with the bodies, ये सारे एक दफा आपने इनको रीड कर लेना है. नेक्स्ट है वर्ब को जो मॉडिफाई कर रहा होगा तो वो एडवर्बियल फ्रेज होगी. मूव्ड, एलिगेंटली, हम्प्ड, हैप्पीली, सिंगिंग म्यूजिकल ट्यून्स, echoed through the vale, babbling happily, journeyed towards the snow-capped peaks, stood as elegant jewels. Okay, तो ये सारे के सारे आपके एडवर्बियल फ्रेज हो जाएंगे. एंड आफ्टर दैट राइट अ लेटर टू द प्रिंसिपल, ये आपने खुद ही लिख लेना है लेटर. उसके बाद रिव्यू एक्सरसाइज है दैट वी विल डिस्कस इंशाल्लाह इनटू द नेक्स्ट वीडियो. अपना रखिएगा बहुत सा ख्याल, एंड इफ यू डिड नॉट सब्सक्राइब द चैनल काइंडली सब्सक्राइब इट. Okay, goodbye.